So hello everyone, welcome to the last lecture series of fundamental right, that is lecture 4. So till now guys, we have total 3 lectures in which we have studied in details regarding the fundamental rights that are available to the citizen of India and also the foreigners that we have discussed. We have discussed everything like what is fundamental rights, from which country's constitution we are inspired and we have taken that. So we basically fundamental rights we have taken from the Bill of Rights of American Constitution. So USA was the first country that granted constitutional status to the fundamental rights, and from there we have taken the fundamental rights. Okay, and we have also made some modification uh, in our fundamental rights. So till now we have studied till Article 30, Clause 1A, right? So we are going to study last article, and that is Article 32. Okay, so what is Article 32? So Article 32 is fundamental rights to constitutional remedies. Okay, so what is Article 32? So basically it gives fundamental rights to constitutional remedies. Okay, so what does this mean? What does this mean that constitutional remedies? So it means that through this article, okay, or you can say this article allows individual to directly approach to Supreme Court of India. ये जो article है Article 32, so it allows individual to directly approach the Supreme Court of India in case of violation of फंडामेंटल राइट्स. तो कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आपका सपोज कोई फंडामेंटल राइट, सपोज राइट टू इक्वालिटी, ओके, और राइट टू पर्सनल लाइफ और पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, कोई भी फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू एजुकेशन, ओके, कोई भी एक फंडामेंटल राइट्स अगर आपका वायलेट होता है, इफ देयर इज एनी फंडामेंटल राइट व्हिच इज वायलेटेड, ओके, so you can directly reach to Supreme Court of India. Okay, so you can say, in other what you can say, that Article 32 contains the legal remedies if the fundamental rights of an individual are violated. Okay, so कहने का क्या मतलब हुआ, तो Article 32, so it allows, sorry, yeah, so it allows individual to directly approach Supreme Court of India, that is SC India, I have written SC of India, Supreme Court of India, in case of violation of fundamental right. Okay, or we can say that Article 32, or we can say that Article 32 contains the legal remedies if FR of individual is violated. Okay, और वायलेटेड. सो अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है किसी भी वजह से, so you can directly reach to Supreme Court of India, and this Article 32 gives you the power. Okay, so therefore हम लोग कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 32 है, ओके, इट इज द आर्टिकल 32, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या करता है, अलाउ करता है इंडिविजुअल टू डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस आर्टिकल 32 makes all other fundamental rights real and enforceable. Okay, क्योंकि अगर ये फंडामेंटल राइट्स नहीं रहता, अगर सपोज करो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं रहता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो और आप कहीं अप्रोच नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, तो फिर क्या होता, फिर कोई भी स्टेट या कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई अदर एजेंसीज हो, वो आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर सकती है, क्योंकि आपके पास कोई लीगल रेमेडीज है ही नहीं कि आप जा सको. तो देयरफॉर this Article 32 makes all other fundamental rights real and enforceable. That is, Article 32 provides teeth to all other fundamental rights to bite. हम लोग कह सकते हैं कि therefore it is Article 32 which makes all other fundamental rights real and enforceable. Okay,
और इसी वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो देयरफॉर डॉक्टर अम्बेडकर described Article 32 as the heart and soul of the Indian Constitution. राइट. सो इसी वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला इस आर्टिकल को, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो you can write this question that why B R Ambedkar has described Article 32 as the heart and soul of the Indian Constitution. So you can write this as your answer. So I am just giving you a question. Okay. So what is the question? That why Dr. Ambedkar, or simply you can write why Article 32 is described as the heart and soul of Indian Constitution. So this is one question. So if you're watching this lecture, so I will recommend, okay, try to answer this question in 150 word. Answer this question in 150 word. Okay. So why Article 32 is described as heart and soul of Indian Constitution? So this is the question that you must try to write. Okay. So Article 32 क्या है? So it is a fundamental right to constitutional remedies and it allows individual to directly approach the Supreme Court of India in case of violation of fundamental rights. Okay. तो इसी के लिए क्या है, इसी आर्टिकल 32 के लिए कॉन्सेप्ट आता है, we termed it as writ jurisdiction. ओके. सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, रिट ज्यूरिडिक्शन, हम लोग रिट फाइल करके लेके जाते हैं. ओके. तो रिट ज्यूरिडिक्शन क्या होगा, तो पावर टू इशू रिट इज कॉल्ड रिट ज्यूरिडिक्शन. या हम लोग इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड रिट ज्यूरिडिक्शन. रिट ज्यूरिडिक्शन है क्या, तो बेसिकली इट इज अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर्स टू इन्फोर्स राइट एंड इंश्योर जस्टिस. तो रिट ज्यूरिडिक्शन क्या हो गया, तो आर फॉर्मल written orders to enforce fundamental rights and ensure justice. तो ये क्या है, ये एक रिटन ऑर्डर होता है. ओके. दिस रिट jurisdiction. ओके. और ये कॉन्सेप्ट कहां से अडॉप्ट किया गया है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज अडॉप्टेड फ्रॉम इंग्लैंड. ओके. रिट jurisdiction का कॉन्सेप्ट कहां से आया है, तो इंग्लैंड के थ्रू, इंग्लैंड के पास से हमारे पास आया है. ओके. वी हैव सीन that this concept, this jurisdiction was used by England judiciary. Okay. So under Indian Constitution, भारत के संविधान में, so under Article 32, okay, you can write here that writ jurisdiction is enjoyed by Supreme Court under Article 32 and enjoyed by High Court of India. Sorry, High Court of India, not High Court of State. Sorry, Supreme Court of India and High Courts of State. So there are several states. So it is enjoyed by High Courts under Article 226. Okay. So इस दोनों आर्टिकल के अंदर में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज द ऑर्डर टू इशू राइट. ओके. तो this is what writ jurisdiction. Okay. And there are different types of writs in Indian Constitution. So we will now try to understand types of writs in Indian Constitution. Okay. तो सबसे पहला हम लोग जो पढ़ेंगे, the first we are going to understand is the habeas corpus. तो हमने ये सुना है टर्म habeas corpus. तो habeas corpus रेट हम लोग रेट कब इशू किया जाता है, तो habeas corpus का मतलब हुआ, इट मीन्स टू हैव द बॉडी.
टू हैव द बॉडी। सो टू हैव द बॉडी कहने का क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेलिंग टू हैव द बॉडी? तो इसका कहने का मतलब हुआ कि सपोज when an individual, suppose कोई इंडिविजुअल है, when an individual is detained without legal justification, उसे डिटेन कर दिया गया without giving them the legal justification, or is missing, या फिर सपोज there is your friend, okay, जैसे सपोज अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, राइट, ड्यू टू सम इंसिडेंट्स हैपेंड इन करोल बाग। अब हो सकता है कि जो प्रोटेस्ट करे वहां से किसी स्टूडेंट को डिटेन कर लिया जाए, ओके, विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन, या फिर वो मिसिंग हो, ओके, तब क्या होता है, देन द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस मे बी इशूड बाय द कोर्ट, ओके, तब क्या होगा, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इशू किया जाएगा, क्यों, क्योंकि हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होगा, टू हैव द बॉडी, ओके, सो वहां पे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, रिट हैबियस कॉर्पस को इशू करेगी, डायरेक्ट करेगी अथॉरिटी को टू प्रोड्यूस दैट पर्सन बिफोर द कोर्ट, कि कोर्ट के सामने उस पर्सन को लाया जाए, सो दैट कोर्ट कैन सेट हिम फ्री इफ रिक्वायर्ड। अगर वहां पे ऐसा लगा कोर्ट को कि हाँ जिस पर्सन को जो डिटेन किया गया है वो विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन किया गया है, आर्बिट्री ही कर लिया गया है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसे फ्री कर देगी। अगर ऐसा होता है तो अगर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट या स्टेट प्रूफ देगी कि नहीं ये दिस पर्सन वाज इन्वॉल्व इन इलीगल प्रैक्टिसेस, देन देयर आफ्टर सम अदर डिसीजन कैन बी कम, बट when supreme court when court issue habeas corpus writ, so it means to bring that person in front of court, okay, तो habeas corpus का क्या मतलब हो गया, to have the body, to have the body कहने का क्या मतलब हुआ कि when an individual is detained without legal justification, okay, or is missing, then writ of habeas corpus may be issued by the court, और कोर्ट क्या करेगी, डायरेक्टिंग द अथॉरिटी टू प्रोड्यूस द पर्सन बिफोर द कोर्ट, okay, to produce the person before the court, and after that so that court can set him free if required, okay। और ये जो रिट पिटिशन है, okay, ये जो रिट पिटिशन होगा, it can be filed before the court by any individual or by an organization, okay, और इसमें ये मैंडेटरी नहीं है कि जो एग्रीव्ड होगा वो खुद इस पिटिशन को डालेगा, रिट पिटिशन को। एग्रीव्ड कहने का मतलब हो गया कि जो पर्सन मान लो डिटेन हुआ, जो इंडिविजुअल डिटेन हुआ, ये जरूरी नहीं कि वही इंडिविजुअल इस पिटीशन को डाले, रिट पिटीशन को, उसके जगह पे कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डाल सकता है इस रिट पिटीशन को, ओके। सो दिस रीट, आई विल राइट हियर, दिस रीट कैन बी, ओके, कैन बी, सॉरी, नॉट इशू तो, ओके, दिस रीट कैन बी फाइल्ड बिफोर द कोर्ट बाय एनी इंडिविजुअल, ओके, जो उससे रिलेट करता हो। अभी एनी इंडिविजुअल, अब जिसको पता ही नहीं रहेगा कि वो पर्सन डिटेन तो कैसे करेगा, तो एनी इंडिविजुअल कहने का मतलब हुआ कि उसके फ्रेंड, उसके फैमिली में से कोई भी रिट पिटिशन डाल सकता है, एनी इंडिविजुअल, और सपोज बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, ओके, बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और इसमें एक और पॉइंट यहां पे लिख लो, नॉट नेसेसरली by the aggrieved himself, by the aggrieved himself, ओके। तो अब यहां पे क्या होगा, ये जो लास्ट पॉइंट है, नॉट नेसेसरली बाय द एग्रीड हिमसेल्फ, तो इससे क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई होता है, ओके, द प्रिंसिपल ऑफ लोकल, इस वजह से क्या हुआ, ये नॉट नेसेसरी बाय द एग्रीड हिमसेल्फ, तो इस वजह से क्या हो गया कि जो लोकस स्टैंडाई जो प्रिंसिपल है, यहां पे अप्लाई, नॉट अप्लाई इन केस ऑफ
in the case of habeas corpus, in the case of habeas corpus. तो लोकस स्टैंडाई कहने का क्या मतलब हो गया? लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकस स्टैंडाई? तो लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है कि ये बेसिकली एक प्रिंसिपल है जहां पे एग्रीव्ड हैज अ राइट टू गो टू द कोर्ट टू गेट हिज राइट इम्प्लीमेंटेड. ओके, तो लोकस स्टैंडाई में क्या होता है कि एग्रीव्ड जो एग्रीव्ड है, जिसका फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, जिसका फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, ओके, तो वो खुद कोर्ट जाता है टू गेट हिज राइट इम्प्लीमेंटेड. बट इस केस में क्या है, हैबियस कॉर्पस के केस में क्या है कि इंडिविजुअल प्रेजेंट ही नहीं है. ओके, इंडिविजुअल आइदर इट इज मिसिंग, ओके, और इट इज डिटेन्ड विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन. तो अगर कोई इंसान जेल के अंदर, तो हाउ ही विल फाइल द रिट पिटिशन? ओके, या मिसिंग है. तो इसी वजह से इस केस में क्या है कि लोकस स्टैंडाई का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो प्रिंसिपल है, वो अप्लाई नहीं होता है हैबियस कॉर्पस में. लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या हो गया? तो लोकस स्टैंडाई इज द प्रिंसिपल वेयर द एग्रीड हैज अ राइट टू गो टू द कोर्ट टू गेट हिज राइट्स इम्प्लीमेंटेड. ओके, और यहाँ पे क्यों अप्लाई नहीं होता? बिकॉज द पर्सन इज इन डिटेंशन और इज मिसिंग, सो ही कैन नॉट मूव इनटू द कोर्ट हिमसेल्फ. देयरफॉर लोकस स्टैंडाई मे नॉट अप्लाई. ओके, सो दैट्स व्हाई लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है. सो दिस इज द फर्स्ट रिट, दैट इज हैबियस कॉर्पस. ओके, नाउ सेकेंड रिट इज मैंडेमस. ओके, और मैंडेमस का मतलब क्या हो गया? कमांड. हैबियस का मतलब था, हैबियस कॉर्पस का, टू हैव द बॉडी. मैंडेमस का मतलब है कमांड. ओके, सो जस्ट अ सेकेंड. या, तो मैंडेमस का मतलब क्या होगा? कमांड. मैंडेमस लिटरली मींस कमांड. ओके, और ये कब ऑर्डर किया जाता है? मैंडेमस इज ऑर्डर. ओके, या कोर्ट ऑर्डर करती है. द पर्पस ऑफ मैंडेमस इज टू ऑर्डर अ पब्लिक अथॉरिटी टू डू और नॉट टू डू सर्टेन एक्शंस इन नेचर ऑफ पब्लिक ड्यूटी. ओके, तो मैंडेमस क्या है? पर्पस. कब इसको इशू किया जाता है? तो पर्पस ऑफ मैंडेमस is to give order, okay, a public authority to do or not to do certain actions in the nature of public duty. ओके, सो मैंडेमस क्या करता है? सिंपली ये ऑर्डर देता है, ये कमांड करता है. अब यहां पे क्वेश्चन हो सकता है, कैन दिस मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर? क्या कोर्ट मैंडेमस ऑर्डर कर सकती है प्रेसिडेंट और गवर्नर को? मैंडेमस रिट इशू कर सकती है? तो नो. ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. सो मैंडेमस cannot be issued against president और गवर्नर. ओके, गवर्नर और प्रेसिडेंट के खिलाफ मैंडेमस रिट इशू नहीं हो सकता है. सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन. नाउ वी विल सी थर्ड टाइप ऑफ रिट, दैट इज प्रोहिबिशन. ओके, और प्रोहिबिशन रिट इशू किया जाता है ओनली अगेंस्ट अ जुडिशियल और अ क्वासी जुडिशियल बॉडी. ओके, सो दिस रीड, ओके, सो प्रोहिबिशन रिट जो होता है, इशू होता है, इशूड ओनली अगेंस्ट अ जुडिशियल बॉडी के खिलाफ या अ क्वासी जुडिशियल बॉडी के खिलाफ इशू किया जाता है. ओके, क्यों किया जाता है? टू इंश्योर, ताकि इंश्योर कर सके कि जो बॉडी है वो रिमेन विद इन इट्स लिमिट रह सके. ओके, लिमिट कहने का मतलब उसके जुरिडिक्शन के लिमिट. अब सपोज करो, अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे हाई कोर्ट ऑफ पटना है. ओके, हाई कोर्ट ऑफ पटना है और वो कोई केस हाई कोर्ट ऑफ भोपाल मध्य प्रदेश का ले ले. ओके, हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता का ले ले. अब हाई कोर्ट ऑफ पटना का जुरिडिक्शन हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता तो है ही नहीं. ओके, कोलकाता का कोई भी केस अगर वो कोलकाता में ही हुआ है तो, सो दैट्स व्हाई अगर मान लो ऐसा होता भी है तो इसी वजह से क्या होता है, प्रोहिबिशन रिट को इशू किया जाता है ताकि कोई भी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडी अपने ही लिमिट के जुरिडिक्शन में काम करे.
Okay, so issued only against judicial or quasi-judicial body to ensure such a body remains within the limit of its jurisdiction. ओके, तो प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिशन इशूड होता है सिर्फ इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्यों किया जाता है? ताकि इंश्योर कर सके कि वो जो बॉडी है वो रिमेन्स अपने, मतलब वो अपने ही जुडिक्शन के लिमिट में रहे। ओके, अगर ये जो बॉडी में, जैसे तुम लोग को बताया कि अगर ये ऐसी बॉडी कोई भी केस लेती है जो कि बियॉन्ड उसके जुरिडिक्शन में है, तो प्रोहिबिशन का रेट हम लोग इशू कर सकते हैं, प्रोहिबिशन का रेट इशू कर सकती है कोर्ट। ओके, कैन बी इशूड अगेंस्ट द बॉडी टू प्रोहिबिट द बॉडी फ्रॉम प्रोसीडिंग विद द केस। Okay, so this is what prohibition writ. Now we will see fourth type of writ, that is certiorari. Okay, और इसको हम लोग कहते हैं quash. Okay, तो certiorari क्या है? ये सिमिलर है प्रोहिबिशन का। Okay, लेकिन इसमें क्या है, एक्सेप्ट क्या है इसमें कि जो इशू होता है किसी भी जजमेंट डायरेक्शन को या किसी भी ऑर्डर को क्वाश करने, मतलब इन हिंदी समझो तो रद्द करने के लिए ये रिट किया जाता है। ओके, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं सिमिलर टू प्रोहिबिशन, एक्सेप्ट क्या होगा? एक्सेप्ट इट इज इशूड टू क्वाश अ जजमेंट डायरेक्शन, ओके, या ऑर्डर, ओके, which was issued by a judicial or quasi judicial body by going beyond its jurisdiction. ओके, तो जैसे मैंने तुम लोग को बताया कि सपोज करो हाई कोर्ट ऑफ पटना केस ले ले कोलकाता का। ओके, तो क्या होगा वहां पे? प्रोहिबिशन रिट इशू हो सकता है। अगर मान लो उस टाइम प्रोहिबिशन रिट को इशू नहीं किया गया, हाई कोर्ट ऑफ पटना क्या करे, कोई भी जुडिशियल ऑर्डर दे दे या जजमेंट दे दे उस केस के खिलाफ, और फिर क्या होगा कि फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाएगा कि हाई कोर्ट ऑफ पटना का तो जुरिडिक्शन था ही नहीं, तो हाउ दे कैन इन्वॉल्व इन दिस मैटर। तब वहां पे क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट सर्ट्यूटरी रिट इशू करेगी, और वो रिट क्या करेगा, सिंपली वो क्या करेगा, उस जजमेंट को रद्द कर देगा। जो भी डायरेक्शन होगा, जो भी जजमेंट डायरेक्शन होगा, जो भी ऑर्डर होगा, उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ओके, सो दैट इज व्हाट सर्ट्यूटरी। नाउ द लास्ट रिट दैट वी आर गोइंग टू सी, इट इज क्यो वारंटो। ओके, फिफ्थ वन इज क्यो वारंटो। जस्ट या क्यो वारंटो। ओके, और क्यो वारंटो कब इशू होता है? ओके, क्यो वारंटो का मतलब क्या हो गया कि व्हाट इज योर अथॉरिटी। इसमें कोर्ट क्या पूछती है, क्यो वारंटो जब इशू होता है तो इसका मतलब हो गया कि पूछा जाता है अथॉरिटी से कि व्हाट इज योर अथॉरिटी। पर्पस इस रीट का क्या है, सिंपली समझे, टू इंश्योर कर सके कि जो पर्सन होल्ड कर रहा पब्लिक ऑफिस, कोई भी पर्सन है, द पर्सन हु इज होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस इज कॉम्पिटेंट इनफ, कॉम्पिटेंट है या फिर क्वालिफाई है उस पोस्ट को, उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए। ओके, तो क्यो वारंटो का मतलब क्या होता है, व्हाट इज योर अथॉरिटी। आपका अथॉरिटी क्या, आप कॉम्पिटेंट हो कि नहीं, ओके, आप क्वालिफाई हो कि नहीं उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए। सो पर्पस ऑफ this read is to ensure that person who is holding a public office is competent enough or qualified to hold that office, so this is what क्यू वारंटो। इसमें पूछा जाता है कि अथॉरिटी क्या, व्हाट इज योर अथॉरिटी, यू आर कॉम्पिटेंट इनफ और नॉट, और यू आर क्वालिफाइड फॉर दैट पोजीशन और नॉट। सो दिस इज व्हाट क्यू वारंटो। ओके, सो दिस इज writ jurisdiction. These are the different type of writ jurisdiction. Now I told you, okay, कि writ jurisdiction क्या है,
सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर में ये पावर एंजॉय करता है और हाई कोर्ट 226 के अंदर में एंजॉय करता है. नाउ वी विल सी हाउ आर्टिकल 32 इज डिफरेंट फ्रॉम आर्टिकल 226. तो हम लोग दो टेबल बना लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग आर्टिकल 32, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226. तो हम लोग इसके समझेंगे कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26 के अंदर क्या है. ओके, सो देखो आर्टिकल 32 तभी यूज किया जाएगा, तभी इन्फोर्स किया जाएगा व्हेन इट इज द मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट. ओके, सो इट इज फॉर enforcement ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली. ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए यूज किया जाएगा आर्टिकल 32. ओके, और ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 226 जो है इट इज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ओके, ये फंडामेंटल राइट्स के लिए भी है एज वेल एज अदर लीगल राइट्स. अगर कोई और भी लीगल राइट्स किसी का हनन हुआ है, ओके, किसी का अदर लीगल राइट्स भी डिस्टर्ब हुआ है, तो उसके लिए भी हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का यूज कर सकती है. ओके, सो इट इज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज अदर लीगल राइट्स. ओके, और आर्टिकल 32 कौन यूज करेगी? तो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू यूज, पावर ऑफ एससी टू इशू रिट. ओके, टू इशू रिट. और ये किसका रिट जुरिडिक्शन है? ये है पावर ऑफ हाई कोर्ट. राइट, अब इसमें क्या होता है, आर्टिकल 32 में क्या है, सुप्रीम, दिस इज द मैंडेटरी पावर. ओके, ये मैंडेटरी पावर है टू इशू द रिट. ओके, तो इसमें क्या है, सिंपली समझो तो रिट इज मैंडेटरी. ओके, रिट इज मैंडेटरी. ऑन द अदर साइड दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ हाई कोर्ट. इस केस में क्या हो सकता है, रिट इशू हो भी सकता है, रिट इशू नहीं भी हो सकता है, बट इस केस में ये मैंडेटरी है. तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्क्रिशनरी पावर. मतलब यहां पे इशू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट यहां पे क्या मैंडेटरी पावर है. ओके, इसका स्कोप क्या है, इट स्कोप इज नैरो. अब नैरो क्यों है इसका? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए है. इसका स्कोप क्या होगा, वाइड होगा. देखो हमें कोई भी चीज को रटने का जरूरत नहीं है, सिंपली समझो. अब यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करेगा, ये अदर लीगल राइट्स को भी यूज करेगा. ओके, इसको यूज कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे स्कोप क्या होगा, नैरो होगा, यहाँ पे स्कोप वाइड होगा. यहाँ पे क्या, अब आर्टिकल 32 हमने पढ़ा, ये फंडामेंटल राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है. तो फंडामेंटल राइट्स में क्या होगा, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं. तो पावर ऑफ एससी टू इशू रिट्स हम लोग आर्टिकल 32 के अंदर में देखेंगे. ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 26 पे भी हम लोग देखेंगे, बट ये किसका पावर है, हाई कोर्ट का. तो हाई कोर्ट इसके अंदर में रिट्स इशू कर सकता है. यहाँ पे क्या होगा, मैंडेटरी है रिट इशू करना कोर्ट का. ओके, तो यहाँ पे मैंडेटरी पावर है, यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब इशू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ओके, ये क्या है, आर्टिकल 32 क्या है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि हम लोग फंडामेंटल राइट में पढ़ रहे हैं. और ये क्या है, ये नॉट अ फंडामेंटल राइट है. ओके, और आर्टिकल 32 क्या होगा, ये सस्पेंड हो जाएगा. जैसे मैंने तुम लोग को बताया कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है हमारा, सस्पेंड भी हो जाता है जब इमरजेंसी होगा. तो सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी. ओके, और ये क्या है, ये कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी. ओके, अब यहाँ पे एक, अब मान लो हमें और पॉइंट लिखना है, हमें कितने लिखा है, 3 6, हमने टोटल 6 पॉइंट, मान लो हमें 7 पॉइंट लिखना है. ओके, हमें 7 पॉइंट लिखना है. तो एक लास्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट कहीं का भी किसी भी स्टेट का कोर्ट, किसी भी स्टेट का केस ले सकता है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का वो वाइड है, बट हाई कोर्ट क्या है, वो सिर्फ अपने स्टेट का ही कोर्ट कोई भी केस ले सकता है. तो उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होगा, नैरोयर होगा. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो होगा वो क्या होगा, वाइडर होगा. ओके, वाइड होगा,
और ऑन द अदर हैंड इसका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो होगा वो नैरोयर होगा, क्योंकि वो पार्टिकुलर स्टेट का ही, वो अपने स्टेट का ही लेगा। ओके, नैरोयर। सो दिस इज व्हाट Article 32 and Article 226. So this is all about fundamental rights. Okay, so let me just tell you, we started from the fundamental rights कि fundamental rights होते क्या है, what is fundamental rights. So it is a special sets of right, then we go through what is fundamental rights, ordinary rights, right. फिर हमने आर्टिकल 12 से स्टार्ट किया एंड वी एंडेड टिल आर्टिकल 32। ओके, तो देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब इतने सारे आर्टिकल हैं, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपल सा इस तरीके का एक न्यूमोनिक्स कह सकते हो, एक बुलेट पॉइंट में हम लोग इस तरीके से इसको बना सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा हमें, कि हमारा सारा फंडामेंटल राइट सामने होगा और हमें याद करने में आसानी होगा, राइट। जस्ट 1 सेकेंड, just a second, let me just copy it from here. Copy and let's paste it here. Okay, so we have the fundamental rights. तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं हमें याद करने के लिए। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, हम लोग सबसे पहले एक बार गो थ्रू करेंगे सारे फंडामेंटल राइट्स। तो ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से 35, ये याद रखना है कहाँ पे है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में, पार्ट 3 में है। ओके, फंडामेंटल राइट कहाँ से स्टार्ट होता है, राइट टू इक्वालिटी। देखो सिंपल हमें समझना है कि इफ वी आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके, तो हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या हो सकता है, तो सबसे पहले कि हम इक्वल हो। तो पहला जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, राइट टू इक्वालिटी, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। ओके, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक हमारा राइट टू इक्वालिटी आता है। जैसे आर्टिकल 14 क्या हो गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जैसे हमने पढ़ा था, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर आर्टिकल 15 क्या था, तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एंड रेस, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दिस। ओके, देयर आर्टिकल 16। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट मेक अ चार्ट हियर, ओके, जहां पे हम अपने सारे आर्टिकल्स जो भी हैं, जितने फंडामेंटल राइट्स है वो सारे यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करके, ओके, सो दैट वी कैन सी एवरी डे, और हमारा ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेमोराइज हो जाएगा। वी डोंट नीड टू जस्ट डू रेक्टिफिकेशन। ओके, सिंपल है। आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 से 22 राइट टू फ्रीडम ऑफ, ओके, एनीथिंग। ओके, फ्रीडम ऑफ एनीथिंग मतलब क्या हो गया, कि पहले आर्टिकल में 19 में क्या है, फ्रीडम ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, राइट। फिर क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर अगर हम लोग राइट टू फ्रीडम से आगे बढ़े, तो अब देखो क्या, इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम भी हमें चाहिए एज ए सिटीजन। सोचो हमें क्या चाहिए अपने सोसाइटी में, कि सबको इक्वल हो, राइट टू इक्वालिटी। फिर हर कोई फ्रीडम हो कुछ भी करने के लिए, कुछ भी करने का मतलब कोई भी जॉब, कोई भी प्रैक्टिस, ओके, कुछ भी अपना व्यू को प्रकट कर सके, ओके, अपने व्यू को एक्सप्रेस कर सके, कुछ भी स्पीच कर सके, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन कर सके, उस चीज का फ्रीडम होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, कि बिना मतलब का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। ओके, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अगर कोई गलत तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है या कोई बिना वजह का एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वी कैन डू दैट। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हो गया। फिर हमें क्या चाहिए, अब हमारा, अगर हम लोग अपने कंट्री इंडिया को देखें, सिंपली एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी सी, तो हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन है, ओके, बहुत सारे कल्चर है, तो देयर शुड बी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। अब कल्चर का जैसे मैंने बात किया, तो कल्चर हो गए, उसके अपने एजुकेशन होंगे, ओके, तो देयरफॉर देयर शुड बी राइट फॉर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो वो एक फंडामेंटल राइट हो गया, राइट। फिर स्टार्टिंग में क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट था, बट मैंने आप लोग को बताया कि क्या वो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इस फंडामेंटल राइट को डिलीट करके इसे क्या कर दिया गया, लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। ओके, एंड देन आफ्टर ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई इसको वायलेट करता है,
तो कोई एक अथॉरिटी होना चाहिए जिसके पास हम लोग जा सके, तो वो अथॉरिटी कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो देयरफॉर आर्टिकल 32 it gives the constitutional remedies. Okay, it gives constitutional remedies, fundamental rights to constitutional remedy. It means कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स को आप मेमोराइज कर सकते हो। नो नीड टू डू द रट्टाफिकेशन एंड ऑल, सिंपली आप इस तरीके से देखोगे तो क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। ओके, एंड इन द लास्ट वन मोर आर्टिकल, आर्टिकल 33। तो ये एक छोटा, इसको हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 33 क्या है? तो ये इंपावर करता पार्लियामेंट को टू इन्फोर्स रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिक्योरिटी फोर्सेस इन द नेशन ऑफ, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ओके, लेकिन इसमें क्या होगा, 20 और 21 को डिनाई नहीं कर सकता। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, empowers the parliament to enforce restriction on fundamental rights available to security forces। ओके, और ये क्यों? क्योंकि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। बट यहां पे क्या होगा, यहां पे आर्टिकल 20, ओके, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, ओके, फॉर ऑफेंसेस, और आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, लाइफ कहने का मतलब डिग्निफाइड लाइफ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। तो आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कैन नॉट बी डिनाइड। यहाँ पे आर्टिकल 20 और 21 हम लोग डिनाई नहीं कर सकते सिक्योरिटी फोर्सेस को। ओके, पार्लियामेंट, हम लोग नहीं, सॉरी, पार्लियामेंट कैन नॉट डिनाई। ओके, so that's all guys in the fundamental rights series. So in the coming we will plan for some other, like we will plan for DPSP or fundamental duties, or some other like president, council of ministers. So this kind of lecture we are going to bring in the coming days. Okay, so guys, if these lectures are making benefits to you, to kindly share this with your friends. Okay, and do also comment that what you need and what are your recommendation to update us, so that this series can benefit you in preparing UPSC examination and qualifying it in first attempt. Okay, so thank you everyone, see you in the next lecture series.